Okay, so AC circuit questions discussion. Okay, the first question answer कौन होगा को तुम भी solve करो. The AC system is preferred to the DC system because AC voltage can easily be changed in magnitude. DC motor don't have sufficient speed control. High voltage AC transmission is less efficient. Which is the right answer? Oh bhai, Option A. Option A is the right answer. Very good. Option A is the right answer. Okay. କାହିଁକି ନା ତମର କାଲି ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏସି ବି ତମର କ'ଣ ଇଜିଲି ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ହଁ ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜରୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରିପାରିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜରୁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ତମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ in AC system we generate sine wave form because it can easily drawn it produces less disturbance in electrical circuit it is nature's standard other waves cannot produce easily which is the right answer. This is your hypothetical question. Hypothetical question. यार केवल direct answer you can remind. Okay. It produces less disturbance in electrical circuit. ताले जदी तमर से कुछ sine wave तमर actually तमर AC wave रहला different types of AC wave. गोटा हला इटला sine wave. आ गोटा हला तमर कोन ना this is your triangular wave or this is also called your sawtooth wave and another one is called your square wave. Okay. So these are the different AC waves. Suppose now why we are preferring the sinusoidal wave because of it produces the less disturbance in electrical circuits. Dash will work only on DC supply. आंक भितर कोटा केवल DC supply रे काम करिवो. Electric lamp, refrigerator, heater, electroplating. Electroplating is only working on the DC supply. Okay. Refrigerator तुम AC रे काम करिवो, lamp AC, heater भी AC. Dash will produce AC voltage, friction, photoelectric effect, thermal energy, crystal. कोटा आंक भितर AC current प्रोड्यूस करि परिबो बुझला तो AC voltage which is producing the AC voltage तो AC voltage crystal is the right answer काहेना फ्रिक्शन रे हम किछ voltage प्रोड्यूस होनी फोटो इलेक्ट्रिक रे हम एटा देखितली कोन ट्रांसड्यूसर पडला बेले एटा तमरो DC सप्लाई करिवो देन थर्मल एनर्जी हे गला तमरो कोन थर्मल एनर्जी एटा अछि एनर्जी को कन्वर्जन करिया पड़िवो सो क्रिस्टल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉइल इज रोटेटिंग in a uniform field with an 8-pole generator. One revolution of the coil, the number of cycle generated by the voltage is kete. So, तमर बर्तन देजी कोन देखो a coil is rotating in the uniform, okay, uniform rotating magnetic field रे तमर देजी. ताले से कोन कहिछि तुमको कोन बाहर करियो कहिछि तुमको uniform field of an 8-pole generator in one revolution of the coil the number of cycle generated by the voltage is kete because gote revolution re tamara number of cycle kete tamara produce hobo kete hobo tamara kon hobo dekho a coil is in rotating ha dekho tamara actually dita pole hele gota hala tamara north pole out hala south pole dita pole hele tamara kon hobo na gote cycle tamar complete होछि बुझला if two poles are producing one cycle two poles are producing one cycle okay then 8 poles will produce how much cycles 4 cycles so 4 cycle is the right answer okay an alternative voltage is given by V is equal to 20 sin 157t the frequency of the alternating voltage kete तुमको एटा ऑलरेडी मु काली कहि जेताले v जति ए भले तमर दे देला ताले we know that this is nothing but a v max sin omega t ताले अतः we can say here omega is equal to केते गला ना 157 which is nothing but your 2 pi f is equal to 157 ताले अतः f is equal to 157 divided by 2 pi that is nothing but your 25 hertz बुझला तो एटा स्टैंडर्ड हला 314 हवा कथा ओमेगा जते बेले 314 हबो सेते बेले फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज बुझला तो सब बेले मन रखो ताले 314 रे जति आधा हे गला ताले फ्रीक्वेंसी भी आधा हे जो दैट इज 25 हर्ट्ज विदाउट कैलकुलेशन आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बुझि पालो तो सब बेले मन रखो जते फ्रीक्वेंसी 50 हे जो ओमेगा जो 314 ओमेगा दि 157 माने 314 रो आधा ताले फ्रीक्वेंसी कोन जो आधा हे जो इज इक्वल टू 25
an alternating current I is nothing but your I is equal to 10 sin 314t तुम कहली बर्तमान देख 314 दे देथिबो एडी बर्तमान देख 314 दे देला तो जेतेले 314 दे देला ओमेगा इज इक्वल टू 314 दे देला माने डायरेक्टली तुम ए जगह रे किछा कैलकुलेशन करिया दरकार नै 50 हर्ट्ज हेगला तुमर फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टाइम टेकन पता ऑलरेडी एटा को हमें काली डिस्कस करथली 1/f 1/50 is nothing but 0.02 is correct. Okay. An alternating voltage is given by V is equal to this one. So similarly, one more question given V is equal to केते हैला ना 30 sin 314t. बर्तमान देखो ए जगह ओमेगा रा वैल्यू केते हैला ना 314 हैला किंतु क्वेश्चन कम पछार देखो the time taken by the voltage to reach minus 30 volt for the first time ताले केते टाइम ताको लागिबो ताले बर्तमान से कोन कहि देखो भले रे सुना एटा हमर जो ओमेगा हेगला केते हेगला 314 हेगला ताले फ्रीक्वेंसी हेगला तमर केते हेगला तमर 50 हर्ट्ज हेगला ताले जतले फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हेगला टाइम केते हेगला तमर 0.02 सेकंड एतक ऑलरेडी कंफर्म ताले यार माने कोन यार माने हेगला कोन ना जत्ते बेले तमर एठु आरंभ होला एठु सरला एठु आसी के ए जगह रे पहुंचला ता माने ए जगह रो एटा हला तमर +30 दिस इज योर -30 से कहूँ जे केते टाइम लगियो -30 रे पहुंचा पाए एठी कि नाही एटा हे गला मान तो टोटल टाइम पीरियड हे गला 0.02 सेकंड बुझला तो किंतु से कहूँ एटा को से कहूँ -330 रे पहुंचा पाए हेले तुमको केते टाइम लगियो एठी की तो देछि क्वेश्चन ना आ कोन देछि एठी की देछि चल देखो भाई टोटल टाइम हमको केते लागुची ना टोटल हमको टाइम लागुची 0.02 सेकंड ताले एठी हमें कोइ परिया जे एटा गोटे पार्ट सिमिलरली वी कैन से this is your another part okay you can say this is your another part similarly this is your other part and this is your another part clear चल बर्तमान ए जगह में केतरा पार्ट कर देलिया को ना चारटा पार्ट कर देली ताले ए जो फ्रीक्वेंसी टा हमर जो टाइम पीरियड टा एवरी पार्ट पय हम कैलकुलेट करि परिबो ताले टोटल हे गेला चारटा हे गेला जते बेले ताहले गोटिए पार्ट पय तमरो टाइम केते लागिवो ना t डिवाइड बाय 4 चारटा पार्ट हे गेला ना t डिवाइड बाय 4 0.02 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.005 am I clear ताले एई जगह रे जले -30 रे पहुंचो केतरा पार्ट कवर करिवो ना तीनटा पार्ट कवर करिवो ताले टोटल टाइम इज इक्वल टू हे गेला 0.005 into 3 is equal to 0.01 ओके सो ऑप्शन डी इज द राइट बुझी पारलो ना नहीं कि बुझी पाला से कहि जे हमको -30 रे पहुंचा पे केते टाइम लागो हमको कहन जे टोटल टाइम केते लागो टोटल टाइम हेले 0.02 सेकंड किनु -30 रे खाली पहुंचा पे हेले एटा कवर करिवो बुझला तो 1 कवर करिवो 2 कवर करिवो 3 कवर करिवो 4 को आसीबो तनको 3 पर्यंत केते टाइम लागो एटा हला 0.005 ये भी हला तमर 0.005 ये हला तमर 0.005 ताले ये हला 0.01 प्लस 0.02 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे देखो ए साइन वेव हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री 50 केता देखो तुमको एटा काली भी तुमको कहि 135 डिग्री 50 माने तुमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताला बुझला ना व्हाट ए क्वेश्चन इज आस्किंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू गेला e एट 135 डिग्री e रे वैल्यू केते ताले आमे जानि छी जे e इज इक्वल टू e मार्क्स sin थीटा sin ओमेगा t जगह रे बर्तन हम sin थीटा लिखि परिबा कार किछ असुविधा होची कि किछ असुविधा नै काहे कि आमे जानि छी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t की रिप्लेस करके हम थीटा कर देली ताले e 135 50 माने e मैक्सिमम हेगा तमरो 20 वोल्ट sin 135 हम एट करि परिबा बुझला ना यदि sin 135 हम कर देली हम जानि छी जे sin 130 वैल्यू रो 5 रो वैल्यू केते ना 1/√2 ताले 1/√2 रो वैल्यू केते तमरो 0.707 ताले 20 into 0.707 that is nothing but your 14.14 volt clear option b is the right answer अरे बुझियला ना नहीं के बुझि पला क्वेश्चन कर तमे ए साइनोसॉइडल current has a magnitude of 3 ampere at 120 degree its maximum value 50 देखो कोन देछि देखो भल रे क्वेश्चन को पढो मैग्नीट्यूड देछि 3 एम्पियर केते रे ना 120 डिग्री त माने करंट एट 120 डिग्री ऑलरेडी तुमको दे देछि केते ना 3 एम्पियर दे देछि
ताले पचारछि जे मैक्सिमम करंट केते ना हाउ मच द वैल्यू ऑफ I max we know that I max is actually we know that I120 is equal to I max sin theta. This is nothing but your 3 ampere. 3 ampere is equal to केते हैला तमरो I max sin 120. sin 120 ର value हैला तमरो केते √3/2. This is nothing but your I max into √3/2. This is nothing but your I max is equal to केते हैला तमरो ना 3 into 2 divided by √3. ताले √3 के 3 रे काटी दियो केते रहला √3 रहला. This is nothing but 2 √3. So 2 √3 is the right answer. Then number C is the right answer. Clear? Next question देखो कौन देछि. n is equal to Pn by 120. ताले P how much ना 10. n is equal to केते 600 divided by this is your 120. ताले 120 के आसे तो काटले केते रहला 5 रहला. ताले 5 n 5 जा केते गेला तमरो ना 50 गेला. Okay, so option C is the right answer. 11C. Clear? So next question देखो. Is it visible? Right. An alternating voltage V is equal to केते देला तमरो V is equal to केते देला तमरो ना 100 sin 314 t. Okay, its average value will be केते हबो से 50 यार average value केते हबो. ताले भाई देखो आमे जानि छी V is equal to V max sin omega t. ताले V max र value केते हेगला ना V max is equal to हेगला 100. यदि V max 100 हेगला ताले V average 50. ताले how much the value of average value ना 0.637 into V max. So this is nothing but your 0.637 into 100. That is nothing but your 63.7. So option C is the right answer. Clear? Next question कौन दे देखो. The area of the sinusoidal wave. Okay, the area of a sinusoidal wave over a half cycle is केते ना यार एरिया टा केते सर 0.637 टा कोन खाली कहितली मु एरिया ऑफ द साइनसॉइडल वेव ओवर ए हाफ साइकिल. अरे एटा खाली कहैतला ना ने केते हिजो कहि दियो खोजी को जल्दी को ना 2 into maximum value. 2 into maximum value is the right answer. Okay, ता माने टोटल एरिया ओवर द हाफ साइकिल माने एई जो हाफ साइकिल टा रहिला अरे खाली एटा एवरेज वैल्यू कला वाला कहै छी ना एरिया ऑफ द हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय पाई सेथि लागि तमर आस्तला ना 0.637. ताले एटा बर्तन केते गेला ना यार एरिया हे गेला 2 into maximum value. Maximum value it may be I max or it may be E max. Okay, so this is your 2 into maximum value. Next कौन गेला तमरो ना an alternating voltage is given by V is equal to तमर केते गेला 200 sin 314 t. ताले एठी पचार तमर आरएमएस वैल्यू एठी पचारला. ताले सिमिलरली ए जगह रे V मैक्सिमम केते हे जिवो सिमिलरली ये जेमिति ये सेमिति V मैक्सिमम केते गेला तमरो 200 हे गेला काई V is equal to V max sin omega t. ताले एटा बर्तन जे ताले V मैक्सिमम जानि गेलो V RMS पचार RMS is equal to 0.707 into V maximum. This is the formula. So this is nothing but 0.707 into V maximum is nothing but 200. That is nothing but 141.4 volt. So option C is the right answer. Question number C. The average value of sin square over a complete cycle केते पचार sin square theta रो average value पचार तमर केते हो बुझला तो sin square theta तमर कोन पचार ना average value पचार ताहले sin square theta रा हम average value केनते बार करबा ना तमर जदि sin थीटा दे थांदा ताले एवरेज वैल्यू तमर केते हे थांदा कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू थांदा 0 हे थांदा दे जो तने sin स्क्वायर थीटा. सो sin स्क्वायर थीटा पे तमर एवरेज वैल्यू हे गला 1/2. सो 1/2 इज द राइट आंसर फॉर द sin स्क्वायर वेव फॉर ए कंप्लीट साइकिल. ताले तमर तने कहतो जे 1/2 तमर केमति आसला ना दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रेशन. एवरेज वैल्यू हे गला तमर कोन जानचो ना एरिया कोन नहीं divided by केते हेला तमरो 2 पाई. चलो वी कैन राइट हियर देखो कंप्लीट साइकिल तमर दे देची दिस वेव इज नथिंग बट योर sin स्क्वायर वेव जोटा कि तमे आरएमएस वैल्यू रे कैलकुलेट करथि
ताले ये जदि sin स्क्वायर थीटा वेव हे गला sin स्क्वायर थीटा वेव हे गला ताले आमे जानि छे जे एवरेज वैल्यू हे गला तमर केते ना 1 डिवाइड बाय 2 पाई हे जे जेहेतु कंप्लीट साइकिल ऊपर पचा 1 डिवाइड बाय 2 पाई हे गला इनटू तमर कोन हे जो एरिया हे जो ताले एरिया केते हे गला ना एरिया हे गला तमर 0 टू एटी बर्तन केउ जांगे जीवो ना 0 टू 2 पाई जांगे जीवो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 2 पाई ओके वैल्यू केते गला तमरो ना sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा याकू जेतला तुम सॉल्व करिवो यार वैल्यू तमरा आसी 1 सो 1/2 इज द राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनसॉइडल वेव ऑलरेडी जानिछ तमरो फॉर्म फैक्टर हेगला केते 1.11 जदि पचार थांता क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर केते थांता कहि दियो भाई 1.414 हो ना नहीं the form factor of a dash wave is 1 o wave रो form factor से कोची 1 बुझला तो o wave रो form factor तमरो कोन हो ना 1 हो form factor तमरो 1 हे गला आ पई which wave having the form factor 1 option b square wave having the form factor 1 जेहेतु एटा स्क्वायर वेव रहला तो यार एवरेज वैल्यू जते की यार आरएमएस वैल्यू if average value and RMS value both are same, then the form factor is equal to 1. Out of the following, dash wave is the peakiest wave. और कहार वेव टा तमरो बेसी पीक रहबो पीक माने तमरो जनरली एटा तमरो कह जे पीक दिस पोर्शन इज कॉल्ड द पीक ओके ओ वेव टा रो पीक रहबो से कहूची देखो ना ट्रायंगुलर वेव रो तमरो पीकेस्ट रहबो ट्रायंगुलर वेव इज द पीकेस्ट वेव the peak factor पचाला बर्तन में peak factor है गला तमरो 1.414 okay when 15 volt square wave is connected across a 50 volt AC voltmeter it will read देखो square wave पर जनरल क्वेश्चन आसी बार नहीं फिर भी जेतु एटा तमरो बीके मेथड अछि will solve this one this is your 15 volt ना जेतु एटा गला तमरो ओटा स्क्वायर वेव बुझला तो स्क्वायर वेव रे तमरो 15 वोल्ट रीड करियो 15 वोल्ट ओके हमहु जदी सेम क्वेश्चन पचारै थांदा 15 volt square जगह दे दी था sin wave connected across the 50 volt voltmeter it will read as मु बर्तन देखो क्वेश्चन टा को तमर सेम रखा हला देखो सेम क्वेश्चन एटा कर दियो हमरो 21 कर दियो स्क्वायर जगह रे लगे दियो sin wave ताले व्हिच इज द राइट स्क्वायर जगह खाली हम साइन कर दो को अन्य तरीके को सुबुनी जेतला sin wave दे थांदा 50 volt AC मीटर लगे थांदा it will read as ना जनरली मन रखो सब बड़े वोल्ट मीटर रीड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई रे तमरो वोल्ट मीटर टा रीड करिवो आरएमएस वैल्यू ताले जदी साइन वेव हे थांता 15 वोल्ट साइन वेव इज कनेक्टेड ताले यार आरएमएस वैल्यू केते हे थांता ना V RMS is equal to V max into root 2 हो ना नहीं am I clear अरे करेक्ट ना एटा V max by root 2 yes sir V max by root 2 ना into root 2 by root 2 by root 2 ताले जदी V max by root 2 हे गला ताले this is nothing but 15 divided by root 2 ताले 15 by root 2 is the right answer बुझी पाला तो वोल्ट मीटर सब बेले तमरा RMS वैल्यू रीड करियो okay not the maximum value in case of AC supply एटा मन रख नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस करिवा केता हो एटा को ठीक अछि 244 ना केता हो को if V is equal to तमर दे देछि V रे वैल्यू तमर दे देछि केते 200 plus 200 sin 314 okay find the RMS value of the voltage पचार जे RMS value of the voltage केता ओके ता माने हम क्वेश्चन पचार छी V RMS केता ताले हाउ मच द वैल्यू ऑफ V RMS को हमर ए जगह कोन होबो देखो ए जो वैल्यू टे देनी कि गोवर्धन ये एक्चुअली जते बेले ए भलिया देथो केस रे ए जो 200 देखो ना कि ये हे गला तमरो 200 sin 90 बुझला तो तामाने खाली एटा जो 200 भाबुतो ये हला 200 sin 90 बुझला तो किंबा दिस इज आल्सो योर VRMS
दिस इज योर VRMS ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन ताले एटा हेगला तमरो गोटे VRMS आ ये जो पार्ट अछि यार हमें VRMS कैलकुलेट करबा ताले खाली जदी एई पार्ट पे हम जदी VRMS कैलकुलेट करबा ताले दिस इज नथिंग बट योर V max by √2 ताले V max by जदी √2 हेगला ताले दिस इज नथिंग बट 200 by √2 दैट इज नथिंग बट योर 141.0.707 ना 141.4 क्लियर ताले एटा हेगला तमरो VRMS हेगला ताले दिस इज आल्सो योर VRMS ताहले तमे जानिचो जे जतेबेले दीटा वोल्टेज जतेबेले रहिला दिस इज योर VRMS 1 दिस इज योर सम VRMS 2 then there is a resultant will be there okay for this resultant let's consider this is our VRMS 2 okay so this resultant is nothing but your VRMS is equal to this VRMS that means your 200 square plus of 141.4 square यार रूट ओवर कर दियो जेति के आसला दैट इज योर आंसर 244 वोल्ट एटा तुम गोटे थर कहितली को वर्तमान कोन हबो द इंपेडेंस ऑफ RL सर्किट रे इंपेडेंस तमरो पचा दै ताले ऑलरेडी मु तुम कहि इंपेडेंस पे तुम गोटे फार्मूला मन रखिबो गोटे फार्मूला मन रखिला परे तुम जदी RL RC RLC जहा पचार सेई थरु ही इंपेडेंस तमरो आसी जिवो क्लियर ताले तुम ऑलरेडी जानि छ जे इंपेडेंस पे गोटे ही फार्मूला रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस ऑफ X0 स्क्वायर ताले ए जगह रे X रे वैल्यू हेगला 0 सो दैट दिस इज यू कैन से R स्क्वायर प्लस ऑफ XL स्क्वायर सो C इज द राइट इन RL सीरीज सर्किट लाइन करंट इज RL सीरीज सर्किट रे लाइन करंट कोन हो ना तुम कहितले बर्तन देखो जेतु L रहि गला माने एटरेला रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस रे सब बेले करंट लैग करिवो बुझला तो कैपेसिटर हेतले करंट तमरो लीड करथांता तेनु करी एटा हेला तमरो लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बुझला तो लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज नेक्स्ट कोन दिस देखो इन RL सीरीज सर्किट द फेज डिफरेंस phi between the applied voltage and the circuit current will increase बढ़िवो केते बेले बढ़िवो ना से कोजी देखो ए जो वैल्यूटा phi फेज डिफरेंस phi टा तमरो बढ़िवो ओके केते बेले बढ़िवो phi रे वैल्यू ना तमे जानि छ जे पावर फैक्टर हेगला तमरो केते ना cos phi इज इक्वल टू केते हेगला तमरो r phi z ताहाले से कोजी देखो तमरो cos रे को एंगल गुडा को अधिका ना जत्ते बेले देखो ना cos 0 हला मैक्सिमम सबुटो मैक्सिमम हला की cos 0 डिग्री हला तमरो मैक्स cos 90 हे गला तमरो कोन ना 0 हे गला cos 90 इज इक्वल टू 0 दैट इज योर मिनिमम वैल्यू ताले यार वैल्यूटा जदी तमरो डिक्रीज करिवो जदी cos ए जो वैल्यूटा से कोजी देखो ए बर्तन फाइ रे वैल्यू जदी हमरो कोन कोजी से कोजी इंक्रीज करिवो फाइ रे वैल्यूटा इंक्रीज करे दरकार जदी हमें फाइ रे वैल्यूटा जदी हमें इंक्रीज करबा माने बढ़ई जिबा ताले cos फाइ रे वैल्यू कोन हो डिक्रीज होबो ना नहीं अरे मो कथा बुझी पड़ता ना बुझी पड़ जदी तमरो फाइ रे वैल्यू भले रे बुझो भले ठीक टाइम टिके बुझे टिके जदी हमें फाइ रे वैल्यू खाली फाइ रे वैल्यू जदी हम इंक्रीज करबा ताले टोटल वैल्यू डिक्रीज करबा ना करबा काहे की ना cos 0 जते बेले सेटा ला मैक्सिमम वैल्यू cos 90 बेले मिनिमम वैल्यू ता माने जते बेले 0 रु 90 जते बेले हमें कोन करूची इंक्रीज करूची 0 रु 90 जते बेले आसुची वैल्यू कोन होची तमरे डिक्रीज करची वैल्यू डिक्रीज करची सेति लागि तमरो कहया कथा जे यदि फाइ रे वैल्यू हमें बढ़ाइबार अछि ताले ये टोटल वैल्यू डिक्रीज करियो यदि ये टोटल वैल्यू डिक्रीज करियार अछि ताले z टा को हमें बढ़ाया दरकार ताले z इज इक्वल टू की ना रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ xl स्क्वायर ताले ऑब्वियसली जदी xl रे वैल्यू तमरे इंक्रीज हबो ताहले तमरो कोन हे जिवो ना दिस फाइ विल बी इंक्रीज हबो तम बर्तन कहबो जे सर जदी r रो वैल्यू जदी हम इंक्रीज करिया कोन असुविधा हबो ना जदी r रो वैल्यू तुम इंक्रीज करूचो ताले एटा ऊपर अछि कि अछि r अछि ताले r जदी इंक्रीज हे गला तळे सिना z तमरो कोन होची इंक्रीज करछि ता सहित रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करछि जोटा कि टोटल वैल्यू टाको एटा को इंक्रीज करे दो एटा को इंक्रीज करले फाइ रो वैल्यू डिक्रीज हे जिवो बुझिला तो सेते लागि r को हमें इंक्रीज न करी कि एक्सेल टाको जदी हमें इंक्रीज करबा ताहले हमर कोन हबो ना फाइ रो वैल्यूटा इंक्रीज हबो बुझिला तो मन रखो
आउ गोटे जिन देख यहाँ है तुम थियोरेटिकाली प्रैक्टिकल तुमको कहूँ देख प्रैक्टिकली केमती भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर सेटा भी कह ना तमें जानिच जे जितेबले रेजिस्टेंस रहिबो वोल्टेज आउ करंट भितर एंगल जीरो फाई सब एंगल हो जीरो वोल्टेज करंट भितर जितेबाला यहाँ फॉर रेजिस्टेंस ओनली ओके जितेबाला इंडक्टेंस रहिला सेतेबेले तुमर कौन हम ना देयर इज ए लैगिंग करंट आई एंड भी भितर लैगिंग करंट ताल दीटा को जितेबाला कंबाइन हो जिवो सेतेबेले तुमर कौन हो जिवो ना दीटा जितेबाला कंबाइन हो गला गोटे रिजल्टेंट करंट आसीजिवो रिजल्टेंट करंट जितेबाला आसीगला मनकर एटा वोल्टेज दिस इज योर रिजल्टेंट करंट आई ताल दिस इज योर फाई एंगल ये फाईटा केतेबेले बढ़िबो ना जेतेबेले इंडक्टेंस बा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़िबो काहेकि ना रेजिस्टेंस सहित फाई रो किछि भी संपर्क नै फाई सब बेले जीरो जितेबाला प्योर रेजिस्टेंस लागिवो जेहेतु इंडक्टेंस ऊपर डिपेंड करूछि फाई इंडक्टेंस बढ़िले बा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़िले हमर फाई बढ़ी बुझ पाला तो एटा प्रैक्टिकली माने ग्राफिकली एटा हला तमरो थियोरेटिकली जोटा कि तुम भाबुछ भाब ऑप्शन ए इज द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज गिवन बाय पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट रे पावर कंजम्पशन हैला पावर कंज्यूम्ड इज नथिंग बट ट्रू पावर इज इक्वल टू VI तमर कोन हे जिवो तमर ट्रू पावर रो वैल्यू तमर केते हे जिवो अब ट्रू पावर रो वैल्यू हैला तमर VI cos phi ये जो VI देखो ना कि ये V हैगा तमरो VRMS into IRMS cos ताले VRMS is nothing but your V max by root 2 IRMS is nothing but your I max by root 2 I max by root 2 into cos phi. So this is nothing but your V max I max by 2 cos phi. So B is the right answer. Okay, B is the right answer. V max I max by 2 cos phi. Clear? Next question. The power factor of an AC circuit is given by power factor तुमको already कही बारंबार गोटे फॉर्मूला मन रख power factor पाई R by Z. That is the power factor. So we can say here R by Z is the right answer. In RL series circuit, R value दे देला, XL value दे देला, the phase angle between the voltage and the circuit current is केते? तले आमे पचासी phase angle हमरो कौन जानी cos phi केते R by Z. तले इस जगह बर्तमान Z बाहर करते हैं, Z है गला root over of R square plus of XL square. तले R square रो value is nothing but your 10 रो square. XL रो square है गला तुम्हारा केते गला 10 रो square. That is nothing but your 10 root 2. Then we can say here this is your 10 divided by 10 root 2. Then 10 जदि कटि गला this is nothing but 1 by root 2. We can say phi is equal to cos inverse of 1 by root 2, which is nothing but your 45 degree. So 45 degree is the right answer. Okay, यार option टा सेपट को रह जाइए. Okay, next question है तमरा कौन? An inductive circuit draws a line current of 10 ampere. Okay. Next कौन कही देखो if the reactive component of the line current is 6 ampere, the power factor of the circuit कैसे पता है? Power factor तुम कैसे पता है? ताले power factor टा में केमती कैलकुलेट करिवा? ये देखिए line current देखिए reactive component of the line current देखिए ताले reactive component देखिए आगे तुमरा कौन देखिए inductive circuit draws a line current of 10 ampere. Okay. ताले how much the value of a power factor तुमको पता है केता हो ना देखो एटा दे दी तमरो लाइन करंट दे दी एटा दे दी तम रिएक्टिव कंपोनेंट ताल देखो तमे जानि छ जे दीटा कंपोनेंट अछि करंट र दीटा कंपोनेंट गोटा हला रिएक्टिव कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट साइन कंपोनेंट अनदर वन इज योर कॉस कंपोनेंट सो वी कैन से दिस इज योर एक्टिव कंपोनेंट दिस इज योर रिएक्टिव कंपोनेंट एंड दिस इज योर लाइन करंट र वैल्यू दे दी 10 रिएक्टिव कंपोनेंट दे दी 6 ताले एक्टिव करंट के कंपोनेंट केते हे जो ना 8 एम्पीयर हे जो एटा ऑलरेडी तुम जानि छ पाइथागोरस लॉ रे 6 8 10 एटा हला तमरो कोन जदि भी न जानि छ किछ असुविधा नै ताले आई एक्टिव इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10 रो स्क्वायर माइनस ऑफ 6 रो स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ 100 माइनस ऑफ 30 व्हिच इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ 64 इज इक्वल टू 8 एम्पीयर ताले 8 एम्पीयर हे गेल तमरो एक्टिव कंपोनेंट तुमको पता है पावर फैक्टर केते ना हमें जानि छी पावर फैक्टर cos phi is equal to this is your phi
ताले फाइ cos रो फाइ वैल्यू केते हिजबो तमरो ना थीटा रो संलग्न बाहु विभक्त कर्ण संलग्न बाहु की एक्टिव कंपोनेंट कर्ण की 10 ताले वी कैन राइट हियर I active divided by I is nothing but I line current. Okay, I line current, that is nothing but 8 divided by 10. This is your 0.8. ताले 0.8 हेगला पावर फैक्टर जदि क्वेश्चन रे तमरो एई जगह रे दे दी थांदा ए नन ऑफ द अबव टाको हटाईकी क्वेश्चन दे दी थांदा 0.8 लीडिंग बुझला त काली भी मु तुमको कहिछि हाउ टू फाइंड आउट लीडिंग एंड लैगिंग फिर भी तुम कहूँ देखो जेहेतु एटा गोटे हमर इंडक्टिव सर्किट रे सबु बेले तमरो लैगिंग हबो जदि एटा कैपेसिटिव सर्किट दे दी थांदा सबु सेम दे थांदा खाली ए इंडक्टिव जगह रे जदि कैपेसिटिव लगै थांदा तले एटा थांदा राइट सेटा भी कहि दउछ देखो जदि सबु ठीक थाय कि ए इंडक्टिव की हटाई कि जदि एटी लिखि थांदा कैपेसिटिव ओके तले ऑप्शन डी हे थांदा राइट बुझि पाला तो बाकी सब सेम रहे बुझियला ना नहीं बुझियला अरे बुझि पाला वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन an RL series AC circuit has 15 volt across resistor 20 volt across inductor the supply voltage is dash से करताना कोन कहला देखो गोटे RL सर्किट अछि this is your resistance this is your inductance ए जगह रे वोल्टेज तमरो अछि 15 वोल्ट ए जगह रे वोल्टेज अछि तमरो 20 वोल्ट तम जदि एटा डीसी सर्किट देई थांदा ताले 15 प्लस ऑफ 20 करिक तम 35 आंसर लिखि थांदा जेहेतु एटा एसी सर्किट रो सब बेले कोन करिवो यार रिजल्टेंट बाहर करिवो रिजल्टेंट बाहर करिया पय हेले गोटिए फार्मूला जोटे तुम मेकानिक्स रे ऑलरेडी पढिचो सेम फार्मूला एठी मध्ये यूज हो so that is nothing but your VRMS is equal to root over of 15 रो स्क्वायर प्लस ऑफ 20 रो स्क्वायर this is nothing but your root over of 225 plus of 400 this is nothing but your root over of 625 which is nothing but your 25 बुझला तो जदि डीसी दे थांदा दिटा काट कर थांदा जेहेतु एसी देइची सब बेले एटा कोन करिवो ना तमरो कोन पकेबो पैरेललोग्राम लॉ थ्योरम पकेबो पैरेललोग्राम थ्योरम तमरो कोन कहितला ना दिस इज योर हेगला तमरो कोन ना एटा एक्चुअली कोन होची देखो एटा ग्राफिकल तुम कहि दोछ देखो एटा ला V एंड I फॉर योर रेजिस्टेंस किंतु फॉर योर इंडक्टेंस एटा हेगला तमरो I एटा हेगला तमरो V एटा हेगला तमरो V VL दिस इज योर VR ताले VR और VL टाको जेतला हमें कंबाइन करिबा ताले कंबाइन कला पर कोन आसला ना दिस इज आवर VR दिस इज आवर VL आमर दरकार कोन रिजल्टेंट ताले दिस इज योर V रिजल्टेंट इज नथिंग बट VRMS ताले VRMS इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस ऑफ VR स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बुझला तो क्लियर चलो हां ठीक है देखो दा द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट shown in figure ताले एई सर्किट रे तमर केते पावर कंज्यूम हो बोली तमु से पचार ताले कोन होबे जगह रे कोन करिया हमें को केता हो को वेरी सिंपल क्वेश्चन looks like complicated but this is your very simple question सर I स्क्वायर R फार्मूला पड़े सीधा I स्क्वायर R फार्मूला पके दबो I स्क्वायर R फार्मूला पके दला पर तमर केता हे जेबो तमरो 400 केता आसी हाउ power is equal to I square I रो वैल्यू है तमरो 20 रो स्क्वायर R रो वैल्यू है 6 तल दिस इज योर है गला 400 into 6 that is nothing but your 2400 direct formula V is the right the reactive power drawn by the circuit this circuit is equal to केते पचाला reactive power केते आमे वर्तमान कोन करबा का कथा भाबिबा ना पावर ट्रायंगल कथा भाबिबा हमर एक्चुअली केतरा पावर अछि तीनटा पावर अछि ओटा ला एक्टिव पावर ए जो पावर तमे एबे कैलकुलेट कलो दिस इज योर एक्टिव पावर एटा हला तमरो रिएक्टिव पावर यू कैन राइट हियर P reactive this is your apparent power P apparent ओके ताले जदी तुमको फाई रो वैल्यू जणा थांता ताले तमे एटा को इजीली सॉल्व करि पाथां ताले फाई रो वैल्यू जणा हवा पई हेले आमे कोन करिबा ना cos फाई कथा भाबिबा ताले cos फाई टाको केते आसीबो ना r बाय z ताले एठी z केते ना z हे गला तमरो समस्त वैल्यू ऑफ z हियर कहि दियो भाई ना z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ xl r स्क्वायर वैल्यू हे गला केते 6 स्क्वायर xl हे गला तमरो 8 स्क्वायर
रूट ओवर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 ओम हे गला तो दिस इज नथिंग बट योर 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज नथिंग बट 0.6 तले जो 0.6 टा आसिला एटा हला कोन पावर फैक्टर हे गला पावर फैक्टर माने cos phi रे वैल्यू गला 0.6 तो तमे जानछो जे कोन जानछो तमे ना ट्रू पावर इज इक्वल टू केते गला तमरो ना अपरेंट पावर vi हे गला अपरेंट पावर इनटू cos phi ताले ट्रू पावर वैल्यू ऑलरेडी तमे जानिछो हाउ मच द वैल्यू ऑफ ट्रू पावर ना 2400 ताले 2400 इज इक्वल टू v into I this is nothing but apparent power into 0.6 then we can say here v into I is nothing but apparent power is equal to 2400 divided by 0.6 ताले this is nothing but एटा को ऊपर नै जा ऊपर नेला पर केता आसी गला तमरो 4000 आसी गला अरे हो ना नहीं ये जो 4000 आसी गला दिस इज योर वोल्ट एम्पियर 4000 हबो तो अरे एटा को 10 टा को ऊपर नै जा और एटा काट दियो 4000 हे गला तम किंतु पचारछि कोन क्वेश्चन रे रिएक्टिव पावर पचारछि केते रिएक्टिव पावर पचारछि तले रिएक्टिव पावर केते हे जिवो ना देखो एटा केमति करबो एटा कर सला पर पुनी आ टाइम तमे नबनी जमा बुझला तो काहे कि टाइम नबनी कहि दउ देखो ना रिएक्टिव पावर रो वैल्यू तमरो केमति बाहर करबो हला रिएक्टिव पावर वैल्यू केमति बाहर करबो ना एटा हगला 4000 कोटा एटा हगला तमरो 4000 एटा हगला तमरो 2400 एटा तमरो आसीबो केते एति तो क्वेश्चन पचारछि आ कोन ना एटा तमरो आसी जिवो ऑलमोस्ट 3200 तल 3200 इज द राइट आंसर बुझला तो जदि तमे कैलकुलेट करिया पई चाहू छ ताले कोन करिवो ना vi sin phi करिवो बुझला तो कोन करिवो vi sin phi करिवो ताले sin phi रो वैल्यू कोठा आनिबो बर्तन तमरो आसीबो कोन sin phi आसीबो ए जे cos phi गला r by z जदि तमरो दरकार आसी रिएक्टिव पावर ताने p reactive is equal to vi sin phi ताले vi हे गला तमरो कोन 4000 sin phi रो वैल्यू केते ना देखो भाई sin तम एटा आनिबो इंपेडेंस ट्रायंगल रो ओके इंपेडेंस ट्रायंगल रे कोन कहितला तुमको काली कहैतला ना दिस इज योर z दिस इज योर xl दिस इज योर r एटा जदी phi हे गला ताले sin phi is equal to xl by z cos phi is equal to गला r by z sin phi is equal to xl by z ताले एथि xl रो वैल्यू केते 8 है z रो वैल्यू गला तमरो केते 10 ताले दिस इज 0.8 ताले ए जगह 0.8 को मल्टीप्लाई करो आसिला 32 आंसर जेमिति करछो करो एटा गला तमरो VAR यूनिट हे जो यार VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव सर एटा को डायरेक्ट बाहर करे चलो हां v का आ sin phi का करले सेम हां हे परिबो डायरेक्टली करले तमे जदी चाहू छ तब न करिया पई तमे डायरेक्ट मध्ये करि परिबो एटा को हम कोन करिया और रे करतो तमर ऑलरेडी ए जगह देखो P रिएक्टिव हमरो पचारछि ना ताले P reactive is equal to VI we know that VI sin phi ताले ऑलरेडी हम जानि गेले sin phi रो वैल्यू केते तमरे जगह रे वोल्टेज केते दे दी तमर 200 दे दी सर 120 एटा हगला I रो वैल्यू केते दी तमर 20 दे दी होना नहीं इनटू sin phi रो वैल्यू हगला 0.8 डायरेक्टली टमाटो मते कैलकुलेट कर नो प्रॉब्लम ओके 4000 into 0.8 that is nothing but 3200 BA क्लियर बुझला तो जेमिति इच्छा होची करो कैलकुलेशन सेम ही आसीबो नेक्स्ट कोन देखि देखो द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट ए जो लाइन करंट अछि यार एक्टिव कंपोनेंट पता ताले बर्तन तुम करंट पे बर्तन गोटा ट्रायंगल ड्रा करो दिस इज योर करंट ट्रायंगल लाइन करंट तुमको एने कहैतला जस्ट एटा हगला तुमर लाइन करंट एटा हगला तार आई एक्टिव एटा हगला तुमरो आई रिएक्टिव ताले हमको पचार जे कोन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट ताले एक्टिव कंपोनेंट के ये दिस इज योर phi ताले कैन आई राइट हियर 11 नंबर सॉल्यूशन ओके क्वेश्चन नंबर 11 रो सॉल्यूशन आई एक्टिव इज इक्वल टू केते हिजो ना 20 cos 60 अरे होना नहीं सॉरी cos phi ताले 20 cos phi रो वैल्यू केते अछि ऑलरेडी तुम सेपटे कैलकुलेट करछो 0.6 ताले दिस इज नथिंग बट योर 12 ampere so 12 ampere is the right answer 11 number A 12 ampere is the right answer बुझियाला अरे बुझा पड़ला ना बुझी पाले की बुझी पाले को
दिस इज योर करंट ट्रायंगल करंट ट्रायंगल लाइन करंट कहि देछि त माने एटा लाइन करंट एटा ला रिएक्टिव कंपोनेंट एटा एक्टिव कंपोनेंट यदि पचाता रिएक्टिव केते हम एटी बाहर कर दवा I reactive is equal to 20 sin phi ताले 20 की 20 रहिला sin phi जगह हम 0.8 मल्टीप्लाई कर दिस इज नथिंग बट सिस्टम क्लियर नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन the active and reactive power of an inductive circuit active and reactive power तुम ऑलरेडी दे दीची पचाची पावर फैक्टर केता हो सिंपल क्वेश्चन एक्टिव एंड रिएक्टिव तुम कहि छ ऑलरेडी गोटी जति की तुम कहितली फार्मूला मन रखो सेति की जति मन रखि पारि थांतो ताले से क्वेश्चन सब तुम पे रसगोला भले लागि थांता बुझला ना तुमको बर्तन बुलबुला भले लागुथो तुम जति मन रखि न था से कहि तमरा एक्टिव पावर दे दीची त माने एटा हला 60 रिएक्टिव पावर दे दीची त माने दिस इज योर 80 एटा ला एक्टिव एटा ला रिएक्टिव ताले एटा तमर केते हिजो ना ऑब्वियसली एटा जो 100 दैट इज योर अपरेंट पावर यूनिट हला v * a 5 हमको पचार पावर फैक्टर पचार माने cos phi हम बाहर करियो ताले cos phi केते हेगला तमर ना cos phi हेगला थीटा रा संलग्न बाहु विभक्त कर्ण संलग्न बाहु हेगला 60 कर्ण हेगला तमर 100 तुम बर्तमान पचार तो 100 कोठ आसला 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सो दिस इज नथिंग बट 0.6 बर्तमान मजा आसला तुम देखो सब जगह तुम दे दीची लैगिंग दे दीची तेनु करी आमे ए जगह बेसी किछि दिमाग लगा दरकार नै डायरेक्टली 0.6 करिया बुझला तो 0.6 लैगिंग इज द राइट आंसर क्लियर जदि तुमर एठी लीडिंग दे दिथान 0.6 ताल तुम से जगह टेंशन में पड़ी थांतो काहे की ना तुमरे जगह इंडक्टिव कहनी कि कैपेसिटिव कहनी जदि इंडक्टिव कहि थांता लैगिंग जदि कैपेसिटिव कहि थांता लीडिंग खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन A 200 volt 50 hertz inductive circuit takes current of 10 ampere. Lagging तमर दे दीची 30 डिग्री. क्वेश्चन में तमर दे दीची lagging 30 डिग्री. The inductive reactance of the AC circuit is केते? ओइ जी बर्तन देखो inductive reactance of the AC circuit is equal to केता हो? केता हो कहि दियो. Inductive reactance तमर पचारची केता हो? कोन करिवा? कोन करिवा? को तमे एठी z कैलकुलेट करि परिबो. Z is equal to V by I. V is equal to 200. I हेगला तमरो 10. So that is nothing but 20 ohm हेगला तमरो Z. ओके ना? इंडक्टिव रिएक्टेंस पचारछि. इंडक्टिव रिएक्टेंस हेगला तमरो कोन XL. तमे बर्तन इंपेडेंस ट्रायंगल कथा भाबो. दिस इज आवर इंपेडेंस ट्रायंगल. इंपेडेंस ट्रायंगल रे तमको कुहाई छि कोन? एटा हेगला Z, एटा हेगला R, एटा हेगला हमरो XL. This is your phi. This is nothing but your phi. ताले बर्तन देखो लैगिंग केते देछि 30 डिग्री लैग करछि त माने phi रे वैल्यू तमर दे देछि 30 डिग्री ताले जदि phi रे वैल्यू 30 डिग्री दे देला हमके xl रे वैल्यू पचारछि ताले हम एठी लिखि परिबा कि xl इज इक्वल टू z sin 30 होनानी ताले z रे वैल्यू होला तमर 20 sin 30 रे वैल्यू होला तमर केते sin 30 इज इक्वल टू 1/2 बधे sin 30 जदि 1/2 हेगला ताले 10 ohm is the right answer 13 number B is the right answer clear अरे बुझियला ना बुझि अरे बुझि परलो ना नहीं के बुझि परलो को जल्दी बुझि परलो यस सर नेक्स्ट कोन कहि देखो द वोल्टमीटर विल रीड ताले एई वोल्टमीटर ता केते रीडिंग दबो तुम कहि रेजिस्टेंस पाखरे केते तमरो हेगला ड्रॉप 80 वोल्ट हेगला ताले ये बर्तन देखो तुम या कथा किछि भाबे दरकार नै एठी अछि तमरो 100 वोल्ट अछि ये वाला 80 ताले ऑब्वियसली या पाउ केता आसीबो ना या पाउ का आसीबो तमरो 20 केता आसीबो 20 एटा कोन डीसी हे गला करे भाई एटा एसी सर्किट व्हाट इज दिस वेरी बैड दिस इज वेरी बैड दिस इज योर एसी सर्किट यदि एसी सर्किट हे गला यस सर एटा गला 100 एटा तमर दे देछि 80 ये हबो केते 60 ये हबो 60 बुझला तो दिस इज योर डीसी सर्किट ना डोंट फॉरगेट नॉट डीसी दिस इज नॉट डीसी दिस इज योर एसी एसी रे सब बेले तमरो कोन हबो ना ए जगह तमरो पचार ना VL इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ V स्क्वायर माइनस ऑफ VR रो स्क्वायर ताले रूट ओवर ऑफ V स्क्वायर हेगला तमरो 100 रो स्क्वायर VR रो स्क्वायर हेगला 80 रो स्क्वायर दैट इज नथिंग बट योर 60 दैट इज क्लियर मजा आसला आगे सर बुझियला लिटन आगे सर एटा जदी न देइथिबो भी तुम केमति जानिबो ना ए जगह रे फ्रीक्वेंसी अछि बुझियला तो
गोटे झीटा बर्तमान जब स्पोर्ट्स ड्रेस पिंधिकी जब तुम टी शर्ट पिंधिकी पलि आइला तुम झील कह ना पु कह झील ही कह ना बहुत किसी अच्छी जानापी डोंट वरी बुझला रिटर्न चलो देखो नेक्स्ट कौन कही देख नेक्स्ट द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट इज इक्वल टू केते को थरे एई क्वेश्चन बोधे एई क्वेश्चन रे 16.29 हां एई क्वेश्चन रे से कहि जे रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट पचास करते रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट इज केते चलो वर्तमान देखो एई क्वेश्चन रे तमे लाइन करंट केमती बाहर करियो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट तुमको पचास केते भलरे मन रखो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट कौन करिवो देखो तमर लाइन करंट बाहर करिया पे हेले फास्ट आमे कौन करिया दरकार जेड बाहर करिया दरकार जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल रो ताले ए जगह रे तमर रेजिस्टेंस केते हेगला 5 3 8 हेगला होना नहीं अरे रेजिस्टेंस दिटा के सीरीज रे अछि तेनको 5 3 8 है ताले टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 8 रो स्क्वायर तमर एक्सएल रो वैल्यू ऑलरेडी तमर क्वेश्चन दे दी 6 ओम सो 6 रो स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 10 ओम जदि जेड रे वैल्यू 10 हे गेला ताले आई इज इक्वल टू केते गेला ना आई लाइन इज इक्वल टू केते गेला ना v अपॉन जेड v रे वैल्यू केते अछि तमरो ना 100 वोल्ट तमे सप्लाई देइछो ए जगह देखो 100 वोल्ट सप्लाई दिया ताले जदि 100 वोल्ट सप्लाई दियाला जेड रे वैल्यू जदि तमरो 10 हे गेला ताले दिस इज नथिंग बट 10 एम्पीयर ताले लाइन करंट रे वैल्यू तमरो केते गेला तमरो 10 एम्पीयर हे गेला जदि लाइन करंट वैल्यू 10 एम्पीयर हे गेला पते रिएक्टिव कंपोनेंट तार केते हो ताले तार रिएक्टिव कंपोनेंट केते हिजबो ना 8 ठु एतकर वैल्यू हेगला 10 एम्पीयर एटा पचारची केते ताले एटा केते हिजबो ना दिस इज योर फाई ना ताले बर्तमान ए जगह तुम जदि sin फाई रे वैल्यू जदि तुम जानि दबो ए क्वेश्चन जदि sin फाई रे वैल्यू जदि जानि दबो ताले तुमको एटा करि परियो ताले ए जगह एटा केते हबो ना I reactive we can write here I reactive is equal to I line sin phi into line current into sin phi ताले sin phi रे वैल्यू केते हेगला तमरो ना sin phi रे वैल्यू हेगला केते you can write here sin phi is equal to थीटा रो सम्मुखीन बाई कर्ण सम्मुखीन हेगला 60 बाई कर्ण हेगला केते 100 ताले दिस इज 0.6 ताले 0.6 हेगला लाइन करंट हेगला तमरो 10 into 0.6 is equal to 6 एम्पीयर 6 बुझला 15 number B is the right clear next question देखो a circuit when connected to 200 volt main a current of 20 ampere leading the voltage by 1/12 of the time period voltage by 1/12 of the time period okay circuit main takes this is your text circuit main takes okay 1/12 of the time period the circuit resistance is केते resistance the circuit resistance is केते हमको एटा बताना क्वेश्चन पता चलो कोन हो सॉल्यूशन यार सॉल्यूशन है एटा तो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो से कोन कहि देखो तुमको दे देछि जे the leading the voltage by 1/12 of the time period okay the circuit resistance is केते ओके ताले बर्तमान देखो हम कोन करबा से कहि जे टोटल ऊपर पचारची केता हो ना देखो हम कोन करबा छी ना फर्स्ट इंपेडेंस ट्रायंगल टा ड्रा कर इंपेडेंस ट्रायंगल दिस इज योर z दिस इज योर r दिस इज योर xc ए जगह बर्तमान एटा xc हे गला जेतो एटा कैपेसिटर अछि दिस इज योर फाई ताले फर्स्ट स्टेप रे हम कोन करबा ना z रे वैल्यू बाहर कर z इज इक्वल टू केते हेला तमरो ना v अपन i ताले v रे वैल्यू हेगला केते तमरो 200 i रे वैल्यू हेगला केते 20 this is nothing but 10 ohm is the right answer not right answer z impedance वैल्यू हेगला तमरो 10 ohm तमरो पचास जी r केता ना r is equal to आमे जानि छी जे z cos phi ताले cos phi रे वैल्यू जदि तुमको जणा पड़ी जिवो ताले तुम एटा सॉल्व करि परिबो ताले हाउ मच द वैल्यू ऑफ cos phi हियर cos phi रे वैल्यू तमरो केते दे देछि phi रे वैल्यू तमरो केते हिजबो ना कहि छी 1/12 दे देछि ऑफ द टाइम पीरियड leading the voltage by 1/12 of the time period ता माने we can write here phi is equal to total हेगला तमरो केते 360 डिग्री divided by 1/12 so this is nothing but your 30 डिग्री ओके ताले phi रे वैल्यू हेगला तमरो 30 डिग्री
ताले वी कैन राइट हियर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री जदी फाई तमर जदी 30 डिग्री हे गला ताले r इज इक्वल टू केते हे गला तमर ना z हे गला तमर 10 cos 30 रे वैल्यू केते √3/2 that is nothing but 0.866 ताले 10 into 0.866 that is nothing but your 8.66 ohm. So B is the right answer. Okay, 16 number B is the right answer. Next question, the power factor of the circuit shown in figure ताले एई फिगर रे पावर फैक्टर पचार के ताले ऑलरेडी हमें बाहर करली पावर फैक्टर हे गला हमर cos phi पावर फैक्टर हे गला हमर केते ना cos phi which is nothing but your cos 30 degree ताले cos 30 degree यदि हमें बाहर करबा ताले cos 30 degree रो वैल्यू केते गला तमरो √3/2 से कहि जे पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट ता माने ये टोटल कंप्लीट सर्किट रे तमरो पावर फैक्टर 50 बुझला तो ताले पावर फैक्टर एठी हमें बाहर करिया पे हेले एठी cos phi रे वैल्यू नबानी एटा गोटे स्पेसिफिक कंडीशन पई दे दला जे phi रे वैल्यू गेला एति की हेले रेजिस्टेंस केता हो बुझला तो ए जो कंडीशन ता दे देजी 112 ऑफ द वोल्टेज लीड जतले करियो सेही जगह रेजिस्टेंस केते सेटा को हमें बाहर करली किंतु ए जगह बर्तन सेही cos phi रे वैल्यू सेति की पकेबा ताले ए जगह हम बर्तन कोन करबा ना हमको बर्तन देखो गोटे वोल्टेज एठी गोटे वोल्टेज ट्रायंगल हम ड्रा करबा ताले दिस इज योर VRMS जोटा कि तुम सप्लाई करा जे 250 वोल्ट एटा बर्तन देखो रेजिस्टेंस पाखरे बर्तन वोल्टेज दे दीजी 150 वोल्ट ताले दिस इज नथिंग बट 150 वोल्ट बुझला तो ताले दिस इज योर cos phi ताले ये जो cos phi रे वैल्यू बर्तन केते हे जीवो वी कैन राइट हियर cos phi इज इक्वल टू थीटा रा संलग्न विभक्त कर्ण तार थीटा रा संलग्न हे गेला तमरो की हे गेला ना 150 थीटा रा संलग्न की हे गेला ना 150 then we can write here 150 divided by 250 ताले this is nothing but your 0.6 ताले बर्तन देखो जदि तमरो दीटा का जगह जदि 0.6 लैगिंग भी जदि देथान बुझला तो मन करे गोटा ऑप्शन टाको हमें ओटे हटाई की एटा हम लिखवा 0.6 लैगिंग ताले एटा तमरो कोन हैतांता ए भलिया क्वेश्चन तमरो ओजे रे पकाए जेहेतु एटा कैपेसिटर अछि सबले मन रखो दिस इज योर लीडिंग पावर फैक्टर तेनु करी 0.6 लीडिंग इज द राइट आंसर जदि एटा इंडक्टिव देथांता ताले लैगिंग क्लियर बारंबार कहूची क्वेश्चन निहाती गोटे आसीबो इथरो लीडिंग लैगिंग ऊपर करिके आसीबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द इंपेडेंस ऑफ RC सीरीज सर्किट इज 10 ओम ओके सॉरी 100 ओम ए जगह तमरो 100 टा कटि जाई दिस इज योर 100 ओम 100 ओम ओके क्वेश्चन कौन देला तमरो RC सीरीज सर्किट दे देछि इंपेडेंस दे देछि इंपेडेंस इज नथिंग बट योर Z इज गिवन इंपेडेंस इज नथिंग बट Z इज गिवन योर 100 ओम ताले से कहछि देखो द सर्किट करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज करंट और वोल्टेज भीतर एंगल दे देछि दैट इज नथिंग बट योर phi बुझला तो वोल्टेज इज नथिंग करंट वोल्टेज एंगल दे देछि phi माने 45 डिग्री दे देछि कैपेसिटी रिएक्टेंस 50 ताले बर्तन हम कहा कथा भाबीबा इंपेडेंस ट्रायंगल कथा भाबी ताले दिस इज योर इंपेडेंस ट्रायंगल Z इज इक्वल टू 100 ओम कैपेसिटी रिएक्टेंस माने XC दिस इज योर R बर्तन तुम भाबतो जे R हमकु दिन तमे केमि बाहर करबा ना जेहेतु phi दे देछि 45 डिग्री तमे एठी लिखि पारिबो डायरेक्टली XC इज इक्वल टू Z into sin 45 बुझला त किबा sin phi Z into sin phi ताले Z रे वैल्यू गेला 100 sin 45 रे वैल्यू गेला 1/√2 100 into 1/√2 1/√2 गेला 0.707 so we can say your 70.7 ohm is the right answer okay बुझला तो यदि एई क्वेश्चन रे तुमको यदि पचार थांदा हाउ मच द वैल्यू ऑफ C F यदि तुमको दे दी थांदा इफ F is equal to 50 हर्ट्ज ताले C रे वैल्यू केते बुझला ना ना तमे C रे वैल्यू बाहर करि पारथांदा काहे कि ना हम जानि छी X is equal to 1/2 pi FC ओके ए जगह रे C रे वैल्यू तुम कैलकुलेट कर दो क्लियर नेक्स्ट कोन देजी देखो 19 नंबर कोन देजी देखो XL रे वैल्यू दे दी 20 ओम X रे वैल्यू दे दी 12 ओम द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी केते एई क्वेश्चन हैला तमरो VVI माने ला वेरी वेरी इंपोर्टेंट एई भलिया क्वेश्चन ही तमरो ओजेई एक्सपेक्ट करियो क्वेश्चन एई भलिया क्वेश्चन ही आसी ओजेई बुझला ताले एठी देखो R दे देछि ओके या पे सॉल्यूशन करिबा एटा R दे देछि तमरो देखो केते गेला 6 ओम XL दे देछि केते तमरो 20 ओम XC दे देछि तमरो केते ना 12 ओम ऑलरेडी तुम भीतर केते जण ऑलरेडी एटा आंसर पाई सारिबो अरे होना नै
केते हबो तमे एटा न देई कहि दबो यार वैल्यू केते 0.6 lagging. वेरी गुड 0.6 लैगिंग इज द राइट आंसर ऑलरेडी तुम जानि सारलो केम जानलो ना तुम जानलो जे z रो वैल्यू हेगला r स्क्वायर प्लस ऑफ xl माइनस ऑफ x रो स्क्वायर तुमको जेहेतु xl माइनस ऑफ x एठी 8 हे जाउची तुमको कैलकुलेट करिया दरकार नै काहे कि ना तुम जानिछो जे 6 रो स्क्वायर प्लस ऑफ 8 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ताले एठी जदी 10 ओम ऑलरेडी तुम जानि सारलोनी तुम पचार जी पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू r बाय z ताले r बाय z माने 6 बाय 10 इज इक्वल टू 0.6 खाली हमर दरकार लैगिंग ना लीडिंग मु तुम कहि छी बारंबार जदी xl जदी ग्रेटर देन टू द x हबो दिस इज योर लैगिंग जदी x इज ग्रेटर देन टू द xl हेतांदा लीडिंग हेतांदा क्लियर काली भी कहि छी आज भी कहू छी काली भी कहबी बुझला ना नहीं कोन भलो मु पाउची तते भलो मु पाई भलो पायार नाही मोर देखियार अछि लीडिंग लैगिंग ताले जेहेतु तमर रहला कोन एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी दिस इज यदि एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल हेतांदा लीडिंग क्लियर द सप्लाई वोल्टेज इज डैश ताले बर्तन देखो एई बर्तन सर्किट रे एई जगह तमर कोन होईची ना आउ टिके सर्किट लंबा हेते छै एटा से एट कनेक्टेड हे छी एटा एट कनेक्टेड ओके ताले बर्तन तुम कोन कहबी देखो द सप्लाई वोल्टेज इज केते ताले एई जगह रे तमर सप्लाई वोल्टेज ता 50 केता माने एई सप्लाई वोल्टेज ता 50 केता ताले तुमको ऑलरेडी कहैची ये सप्लाई वोल्टेज तुम कैलकुलेट करिया पय हेले तुम कोन करिवा दरकार ना तमे कोन करिया दरकार कहि दियो रिजल्टेंट बाहर करिया दरकार ताले बर्तन हम कोन करिवा ना वोल्टेज पय हम कोन करिवा ए ट्रायंगल ड्रा करिवा बुझला तो वोल्टेज ट्रायंगल हम ड्रा करिवा ताले दिस इज योर लेट्स कंसीडर दिस इज योर सीरीज अछि सीरीज रे तमरो VR एटा हला तमरो VR क्लियर ताहले एटा अछि तमरो VL केते देछि देखो 200 VR रो वैल्यू हेगला 100 वोल्ट VL तमरो केते दे देछि देखो ना दिस इज योर लेट्स कंसीडर दिस इज योर VL ओके करेक्ट दिस इज आवर VL रो वैल्यू केते दे देछि ना 200 वोल्ट दिस इज योर VC रो वैल्यू केते दे देछि देखो 200 वोल्ट ताले VL जेतिकी VC सेतिकी जदी हे गला ताहले ये दि जनकर रिजल्टेंट केते कहार यार आ यार रिजल्टेंट केते हे गला 0 वोल्ट जदी यार 0 वोल्ट हे गला ताले के रहिला केवल VR रहिला तेनु करी 100 वोल्टेज त रहला क्लियर बुझि पारलो जदी तुम चाहबो फार्मूला रे हम करिवा फार्मूला रे करि परिबा किछ असुविधा नै बहुत सिंपल VRMS इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ VR स्क्वायर प्लस ऑफ VL माइनस ऑफ VC स्क्वायर so we can write here this is nothing but a root over of 100 square plus of 200 minus of 200 square so this is nothing but a root over of 100 square which is equal to 100 जेमिति इच्छा सेमति बुझला तो क्लियर 100 volt is the right so up to this question we have discussed your 40 questions plus of one question that is your previous year question or whatever it may be asked by your problem so total 41 questions we have discussed and I hope this is very useful for you सबु तक concept तमरा RL series circuit हो किबा तमरा कोन हे गला normal series हो सबु तक concept हमको टिके माने कोन almost तमरा 80% complete हे गला 80 question भीतर 80% complete हे गला आउ जो 20% जो माने जदी पैरेलल करिया पे चाहउछ टिके पैरेलल ऊपर ध्यान रखिबो जदी पैरेलल रे क्वेश्चन पकेबो मोर कहया कथा हला ओजेई रे तमे सेटा को छाडी के आसी काहे कि ना पैरेलल क्वेश्चन जदी तुमको इजी लागिला कर दबो जदी तुमको टिके कंप्लीट होला ताल सेटा टाइम टेकिंग लागे जदी टाइम टेकिंग होला तमे सेटा को छाडीबा को ट्राई करियो आउ सीरीज सर्किट ऊपर जहा क्वेश्चन होला तुम करियो बुझला तो अरे बुझि पाला ना टोटल क्वेश्चन 20 टा से कोठु आनिबो क्वेश्चन एते टोटल जो 20 टा क्वेश्चन से पैरेलल लाइट जीवो कोन पाई से टोटल पैरेलल लाइट जीवार चांस ही नहीं तमरो एई भितर 20 टा क्वेश्चन सिलेबस रो कवर कला को बहुत डिफिकल्ट काहे कना मते मु भी जतल क्वेश्चन तमरो बनौजी मते भी टेंशन लागु कोडु क्वेश्चन दबो बुझला ना नहीं दिस इज योर सिलेबस ना दिस इज योर सिलेबस बुझला तो सिलेबस तम देखो फंडामेंटल एसी सर्किट या भीतर तो मिनिमम 6 टा क्वेश्चन तो बाहरिबो ना 6 टा क्वेश्चन बाहरला ना तमरो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 टा क्वेश्चन 6 3 9 हे गला एटी बर्तन देख एथुरु 3 3 3 कला बेलू के 9 हो गला 9 9 18 हो गला
आउ दुटा क्वेश्चन या भितर एपट सेपट हम बुझला तो तुमको बेसी किसी स्ट्रेस नंबर नहीं खाली फंडामेंटल तुम इलेक्ट्रिकल देखिक जा दैट इज सफिशिएंट फॉर यू ओके डोंट टेक टू मच टेंशन फॉर द इलेक्ट्रिकल क्लियर सो tomorrow we'll discuss about your conversion of electrical energy Yes, sir.